Good morning, students. I am Ramdev from the TSN this school. Now we have continued our chapter. This is the second part of the chapter sectors of Indian economics, class 10. Now historical change in the sectors. Okay. In the previous video, we have discussed the three types of sectors, especially in Indian economy: primary sectors, secondary sectors, and tertiary sectors. Primary sector we also called agriculture and related sectors, that is the important point. And secondary sector we also called service industrial sectors, and tertiary sector we also call service sectors. Now historical change, that means that we have research here the background, like कैसे ये change हुआ बेटा. Generally it has been noted from the historians of many now developed countries that in initial stage of development, ठीक है, प्राइमरी सेक्टर्स वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी. बेटा स्टार्टिंग में व्हेन वी गॉट इंडिया गॉट 1947 इंडिपेंडेंस, उसके बाद बेटा हमने सारा फोकस, हमारा जो इकोनॉमिक फोकस था स्पेशली डेवलपमेंट करने का, ठीक है, वो सारा प्राइमरी सेक्टर्स को, डैट मीन्स एग्रीकल्चर्स को, फार्मिंग को हमने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया. As the methods of the farming changed and the agriculture sectors began to the prosper, it produced much more foods than before. Many peoples could now take up other activity. There were increasing number of the craft persons and the traders. Buying and the selling activity increasing many times. Beside, there were also the transporters, administrators, army, etc. However, at this stage, most of goods produced were the natural product from the primary sector, and most peoples were also employed in these sectors. Now, look, there is now over the long of time, more than 100 of years, ठीक है, बहुत पहले की बात करें बेटा, हिस्टोरिकल हम इसका बैकग्राउंड देख रहे हैं बेटा. स्पेशली बिकॉज द न्यू मेथड्स ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग वर इंट्रोड्यूस, फैक्ट्रीज केम अप एंड स्टार्ट एक्सपेंडिंग. ठीक है, जब आप फैक्ट्रीज बने लगे बेटा, पहले जो भी मैन्युफैक्चरिंग वर्क होता था बाय हैंड होता था, बट जैसे ही मशीनरी आया बेटा, ठीक है, इस मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर्स में, तो डेवलपमेंट बेटा वहाँ से बहुत ज़्यादा रैपिडली बेटा ग्रोथ किया. ठीक है, so manufacturing were the introduced, factories came and they start exploiting. Those peoples who had earlier worked on farms now began to work in the factories in the large numbers. They were forced to do so, as you read in the history chapters, you know, also your book history, वहाँ पे आपने देखा होगा बेटा, peoples began to use many more goods that were produced in the factories in the cheap rates. Secondary sector gradually become the most important in the total production and the employment. Hence, over the time of shifts had taken place, this means that the importance of the sectors had changed. In the past 100 years, there has been the further shift from the secondary to the tertiary sectors in the development countries. Okay, developed countries. The service sector has become the most important in the terms to the total production. ठीक है बेटा, अब यहाँ पे टोटल प्रोडक्शन पूछा है, टोटल अमाउंट ऑफ द प्रोडक्शन. सो यू नो स्टार्टिंग में बेटा प्राइमरी सेक्टर्स का रोल इंपॉर्टेंट था, देन द सेकेंडरी सेक्टर, बट इन द प्रेजेंट टाइम वी हैव डिपेंड द सर्विस सेक्टर्स. Most of the working peoples are also the employed in the service sector. This is the general pattern to observe developed countries. ठीक है, लाइक एक होता बेटा डेवलप्ड कंट्री, एक होता डेवलपिंग कंट्री. डेवलप्ड कंट्री बेटा जो अपनी सारी नीड्स को डिपेंड नहीं होगा किसी दूसरी कंट्री पे, ठीक है, मनी से रिलेटेड, रॉ मटेरियल से रिलेटेड सारी चीज़ें वो खुद अपने आप को सफिशिएंट होता बेटा कि उसके पास सब चीज़ें होती हैं. बट डेवलपिंग कंट्री क्या करेगा, उसको बेटा नीड होगा तो वो दूसरी कंट्री से अपनी चीज़ें बोरो करेगा, ठीक है, एक्सपोर्ट करेगा, इंपोर्ट करेगा. आपके पास जो हो रहा है वो माल आप बेटा उस कंपनी को या उस कंट्रीज़ को देंगे, और वहाँ से वो चीज़ जिसकी नीड आपको है बेटा आप अपनी कंट्री में लेंगे. सो व्हाट इज़ द टोटल प्रोडक्शन and the employment of the three sectors in India over the years has been the change. अब बेटा इसमें धीरे धीरे चेंज आने लगे. कैसे चेंज आए, कैसे इन चेंजेस को हम लेकर आए बेटा, वी हैव कंपेयर टू द ग्राफ. यहाँ पे एक ग्राफ दे रखा है बेटा इन योर बुक, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्टियरी सेक्टर्स इन इंडिया. इसको ग्राफ के अकॉर्डिंग बेटा कंपेयर किया गया है. ठीक है, लुक सीन ग्राफ फर्स्ट शोज द प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स एंड द सर्विस इन द थ्री सेक्टर्स. ठीक है, यहाँ पे आपको तीनों सेक्टर्स दिखाए गए बेटा, ठीक है ना, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्टियरी.
ठीक है। सो फर्स्ट इज कंपेयर द 1973 टू 1974, ठीक है, बहुत पीछे के ईयर से आपको कंपेयर किया बेटा। देन 2013 टू 14 से इसको कंपेयर किया गया बेटा, ठीक है। सो यहाँ पे आप देखेंगे बेटा इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 1973-74, तो जो बेटा उसका रेशो था, ठीक है, वो अप्रोमैक्सली 50,000 के अप्रोमैक्स था बेटा, 5 lakhs। बट नाउ 2013 एंड 14 में आप देखेंगे बेटा प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर का बेटा जो चार्ट है, फ्लो चार्ट, वो इतना बिग नहीं है कंपेयर टू द सर्विस सेक्टर। सो यू लुक सीन कि सर्विस सेक्टर ने यहाँ पे कितना ग्रोथ किया बेटा, ठीक है। सो इट्स द राइजिंग द क्वेश्चंस, तो राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ द टर्शरी सेक्टर्स इन द प्रोडक्शन। तो इसका ऐसा क्या बेटा इम्पोर्टेंस है। सो ओवर द 14 ईयर्स बिटवीन, अब देखो हम बात कर रहे हैं बेटा 14 ईयर्स का, 1973-74 टू 2013 टू 14, while the production is all the 3 sectors has increased, ठीक है, इंक्रीज हुआ बेटा। इट हैज़ द इंक्रीज द मोस्ट ऑफ द tertiary sectors as the result of year 2013-14. The tertiary sectors has emerged as the largest producing sectors in India, replacing the primary sectors बेटा, ठीक है। पहले primary sectors था, but in nowadays service sectors or we say the tertiary sectors are most important sectors in Indian economy. Now we have also share in the GDP, ठीक है, gross domestic product, and graph 2 यहाँ है सेम कंपेयर है बेटा 1973-74 एंड 2013 टू 14 है। यू लुक सीन जीडीपी में बेटा जो सर्विस सेक्टर है उसका इम्पोर्टेंस और उसका कॉन्ट्रीब्यूशंस एक रिमार्केबल फैक्ट है बेटा, ठीक है। हेयर इज द आल्सो द मेंशन ए रिमार्केबल फैक्ट अबाउट इंडियाज एंड दैट वाइल देयर हैज़ बीन द चेंज इन द शेयर इन द 3 sectors in the GDP. The similar shift has not taken place in the employment graph 3, ठीक है। Also the shown in the graph 3 tertiary sector, secondary sector and primary sector, you look here the sectors of employment, ठीक है बेटा। इन सेक्टर्स में कितने परसेंट पीपल्स वर्क कर रहे हैं, वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है बेटा, जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं। सो लुक यू सीन इन द 1972-73 प्राइमरी सेक्टर में बेटा 74% पीपल्स एंगेज थी compared to the present in like 2011 and 12 49% people's engaged, ठीक है। now in secondary sectors 1972-73 11% people engaged and service sector or the tertiary sectors 15% people engaged, ठीक है। now but in the present 2011 and 12 scenario look we seen 49% in the primary sector, 24% in secondary sector and 27% in service sectors. So the primary sector basically related to the agriculture, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे क्या एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटी होगा और इंडिया में स्टिल मोस्टली जो पॉपुलेशन है बेटा दे आर इंगेज इन द एग्रीकल्चर फील्ड। सो जो एम्प्लॉयमेंट होगा बेटा वहाँ पे आपको मोस्टली कंट्रीब्यूशन प्राइमरी सेक्टर का दिखेगा, जीडीपी में बेटा आपको दिखेगा टर्शरी या सर्विस सेक्टर का, ठीक है। सो दैट इज़ द कंपेयर ऑफ द बोथ द सेक्टर्स जहाँ से ये चीज़ें रिलेटेड हो रहा है। सो वेयर आर द मोस्ट ऑफ द पीपल्स एम्प्लॉयड, ठीक है। अब वहाँ कहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयड मिल रहा है, तो ये आप यहाँ से लगा सकते हैं प्राइमरी सेक्टर्स में। और जीडीपी में बेटा कहाँ से सबसे ज़्यादा ग्रोथ मिल रहा है, दैट इज़ द सर्विस सेक्टर्स, ठीक है। सो हेयर we have what is the means of there are the more peoples in the agriculture than it's necessary. So even if you move the few peoples out, production will be not affected. In the other words, workers are the agriculture sectors are under employment. देखो बेटा एग्रीकल्चर सेक्टर्स में स्पेशली इन द फार्मिंग में बहुत से लोग वर्क करते हैं, तो जहाँ पे नीड बेटा आपको 5 पीपल्स का होगा किसी एग्रीकल्चर फील्ड में और सपोज करें वहाँ पे 10 पीपल्स वर्क कर रहे हैं, तो जो टोटल ऑफ वर्क होगा बेटा वो वही होगा, वो ज़्यादा उसको प्रोडक्शन को इंक्रीज़ नहीं कर सकते, ठीक है। कि जितने भी फाइनल जो गुड्स बनेगा, जितने भी बैग्स वहाँ पे वीट्स के होंगे बेटा वो सेम होंगे, चाहे आप वहाँ पे 5 पर्सन्स वर्क करें या 15 पर्सन वर्क करें। सो इसलिए एग्रीकल्चर सेक्टर्स में आपको ये एक प्रॉब्लम देखा जाएगा कि अंडर एम्प्लॉयमेंट एक पॉइंट दिखता है कि जहाँ पे लोग वर्क तो कर रहे हैं बट आपको उनका प्रोडक्शन में या उसका इंक्रीजमेंट नहीं मिलता है। सो वी सेज अंडर एम्प्लॉयमेंट, और अंडर एम्प्लॉयमेंट कहाँ पे दिखता है आपको बेटा, एग्रीकल्चर सेक्टर्स में।
Okay, so this is the second part of this chapters. We have continued in the third part in upcoming videos. Thank you for watching.